लाइक दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद एपी, ठीक है। तो पहले हम लोगों को एपी का जो भी हम लोगों ने याद किया था, मतलब वी डोंट हैव टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग ऑफ एपी, बट वी शुड हैव द बेसिक आइडिया ऑफ लिस्ट, है ना। लिस्ट क्या होता है और सीक्वेंस क्या होता है, तो लिस्ट सीक्वेंस से कैसे डिफरेंट है। सो लेट्स फर्स्ट रिकॉल एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, if I write down a number like 0, 2, -4, 1/2, so like I told you, if I write numbers just like this, it will be very difficult to identify what can be our next number, है ना. Why it is happening? Because these numbers are not following any particular rule or pattern, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर आइडेंटिफाई करना टफ हो जाएगा, करेक्ट. लेकिन हमारा सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इज अगेन collection of numbers in such a way that the numbers follow certain pattern or rule. For example, if I write 2 and then 5 and then 8 and then 11, so we can clearly see that in the previous number what we are doing, we are adding 3, है ना, +3 +3 +3. So it will be easy for us to identify or to determine what will be our next number. It will be 14, right? तो यहाँ पे 14 हो जाएगा. नाउ दिस कैन बी वन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस. दूसरा सीक्वेंस ये हो सकता है कि 2 में मैं 1 ऐड करूं एंड आई विल गेट द नेक्स्ट नंबर. उसके बाद जो भी नेक्स्ट नंबर आया उसमें मैं 2 ऐड करूं एंड आई विल गेट 5. अगेन इन दिस नंबर आई विल ऐड 3, है ना, इस तरह से कर सकते हैं. सो आई विल गेट 8 और उसके बाद अब फिर से नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 12 because I'm adding 4 to it, so I'll get 12, right? Now this is also sequence, this is also sequence, but the difference between these two sequences is the difference between any pair of consecutive terms is same in case of this sequence, while it is different in case of this sequence. Although in both the sequences what is happening, we are able to identify the next term, ठीक है. तो इस वाले सीक्वेंस को जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ठीक है, एपी बोलते हैं. उसके बाद अब आते हैं, समझते हैं हाउ जीपी इज डिफरेंट फ्रॉम एपी. सो बेसिकली फर्स्ट थिंग ये ध्यान में रखना है, जीपी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सीक्वेंस, ठीक है. सो जीपी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सीक्वेंस, मीन्स दिस ऑल्सो फॉलोज अ पैटर्न एंड वी विल बी एबल टू डिटरमाइन द नेक्स्ट टर्म. Okay, now how in GP what kind of pattern it follows? So if we have any term A and if we multiply this term with a particular ratio, we call it common ratio. If we multiply it by R, then we get the next term. First term, suppose हम लोग A1 है हमारा first term, and if we are multiplying it by R, where R is our common ratio, ठीक है, so we are getting A2. Now again in A2 we have to multiply it by the same number, same common ratio R to get A3. समझ में आया ना. इसी तरह से करते करते हम लोगों को नेक्स्ट नंबर मिलता है एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड जीपी. दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड जीपी. पहले हम लोग ऐड करते थे कॉमन डिफरेंस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कॉमन रेशियो, ठीक है. एग्जाम्पल एक देखते हैं. इफ वी हैव 2 एंड इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 3, I'll get 6, ठीक है. Now again in 6, if I multiply 3, I get 18. Yeah. So this form 2, 6, 18 forms a GP. ठीक है. अभी मैंने GP में यहाँ पे सिर्फ 3 टर्म्स लिखे हैं. You can continue this for n number of terms. Okay, it is completely up to you. Again, GP can be finite or infinite, like how we have AP. Types of GP can also be finite and infinite. Now see here. So you understood this example, right? यहाँ पे again they have given one example. 2, 4, 8, 16, 32. So what they are doing, in 2 they are multiplying by 2 to get 4. Again in 4 they are multiplying by 2 to get 8. Again multiply 2, again multiply 2, like this. Okay, so understood this part. Now this 2 is known as common ratio, ठीक है. और हम लोग अपने फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म को
A से डिनोट कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट डाउन यूजिंग A1 नोटेशन. ठीक. So R will be our common ratio, A will be our first term. In the last example, like all the 2-3 examples that we have seen, in that I had taken only natural number, है ना, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया या 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बट R की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकती है. Getting it? So R can be any real number. Like how in AP our D can be positive, negative, and 0, right? Similarly, R can also be any real number. This is very important. Now, what does it mean? इसका मतलब ये है कि कभी कभी चीजें ना डिवीजन के फॉर्म में भी दिख सकता है. देखो, जैसे ये 16 है, ठीक, 16 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1/2, गेटिंग इट, 1/2, आंसर क्या आएगा? 8. वेरी गुड. अगेन इन 8 इफ आई मल्टीप्लाई 1/2, my answer will be 4. Again if you multiply by 1/2, answer will be 2. समझ में आ रहा है? तो जीपी में ऐसा नहीं है कि नंबर हमेशा इंक्रीज होगा, नंबर डिक्रीज भी हो सकता है. सो आर कैन बी एनी रियल नंबर इफ इट लुक्स लाइक फ्रैक्शन लाइक दिस. ये हमारा अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह है ना कुछ, तो नंबर तुम्हारे क्या होते जाएंगे? डिक्रीज होते जाएंगे. ठीक है. अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, डेफिनेटली यू आर मल्टीप्लाइंग बाय अ हायर नंबर, राइट? तो फिर नंबर उस केस में क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा. जैसे इस केस में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 2 इज व्हाट? 2 इज 2/1, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? नंबर हमारा इंक्रीज होगा. अगर प्रॉपर फ्रैक्शन से करोगे तो नंबर हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा. इसी तरह से पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, 0 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है. ठीक है. सो योर जीपी कैन ऑल्सो लुक लाइक 16,0,0,0 एंड सो ऑन. नाउ व्हाट डज दिस मीन? वी हैव मल्टीप्लाइड द फर्स्ट टर्म बाय 0. ठीक है. आगे सब में उसको हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो अगर कभी जीपी ऐसा दिखे ना, तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या है कि हमारा कॉमन रेशियो 0 है. ठीक. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर कैन बी एनी रियल नंबर. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ आर. ठीक है. आर की वैल्यू कैसे मिलती है? जैसे डी की वैल्यू हमेशा ना, इसको अगर एपी से कनेक्ट करके देखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा सब समझना. सो लाइक इन एपी, हाउ डू वी गेट डी? वी यूज टू गेट डी बाय A2 माइनस A1, है ना, या फिर किसी भी एक कॉमन चीज को ले लो, AN+1 माइनस AN अगर करोगे तो डी आएगा. ठीक है. सिमिलरली आर इज गिवन बाय AN+1 डिवाइडेड बाय AN. ठीक है. सो प्लीज राइट इट डाउन. R is given by AN+1 divided by AN. Okay. So again, coming back to this example, how do we get R in this case? 8 divided by 4 or 4 divided by 2 or 16 divided by 8. You will see that in all of these calculation, in all these cases, your answer will be 2. क्या बोलते हैं, जैसे AP के केस में उन लोगों ने कुछ questions दिए थे ना, identify whether the given sequence is in AP or not. So what we were doing? We were subtracting all the given consecutive terms, and then we were seeing whether the D is same for all of them or not, right? Similarly, if they ask you question, you divide each and every term. मतलब 4 को 2 से डिवाइड करो, 8 को 4 से डिवाइड करो, 16 को 8 से, 32 को 16 से, और तुम्हारा आंसर अगर हर बार सेम आ गया, it means the given sequence is in GP. ठीक है. Shall we solve one question? तो जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, first you have to show that the progression 2, 6, 18, 54 is a GP. तो सबसे पहले तो ये शो करना है कि ये GP है. उसके बाद once you have shown that it is a GP, then write its first term, common ratio, first term and common ratio. Only write these two things. Remaining things I'll teach you how to find out. Write down its first term and common ratio. हो गया. What is the first term? 2. What is the common difference, Pragya? 3. Very good. Common difference हमारा 3 निकला.
Okay, so just revising the same thing again. If we have a GP like 5, 10, 20, 40, so we can say that the first term is 5 and the common ratio here is 10 divided by 5, which is 2. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब दिस स्लाइड इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज गिवन बाय ए एंड द कॉमन रेशियो विच इज गिवन बाय आर एंड आर कैन बी फाउंड यूजिंग नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म. ठीक है, तो ये सब कुछ वही है, हमने ऑलरेडी कवर किया है इसको. Now coming to the finding out nth term of a GP. ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. राइट डाउन nth term of a GP. चलो एक बार ना हम लोग साथ में साइड में एपी का भी कॉन्सेप्ट लिखते जाते हैं. ठीक है, एपी का भी कुछ याद करेंगे, रिलेट करेंगे तो इजी रहेगा. सो एपी में वी यूज टू फाइंड ए एन बाय a plus n minus 1 into d, है ना, a plus n minus 1 into d, where a was our first term, n was our nth term, minus 1 तो constant है and d was our common difference. ठीक है, देखो अभी इसी तरह से ना nth term of a GP also we can find. ठीक, तो अब GP का nth term कैसे मिलता है उसको अभी तुम लोग खुद ही लिखोगे. आई विल नॉट गिव यू दिस, बट बिफोर गोइंग टू दिस आइडेंटिफाई द पैटर्न फर्स्ट. देखो इसी चीज को हम लोग ले लेते हैं. 2, 6, 18, 54, इसी को ले लो. 2, 6, 18, 54. ठीक है, 2 से 6 कैसे आया, मल्टीप्लाइड बाय 3. ठीक है, नाउ अगेन डोंट कंपेयर फ्रॉम 6 नाउ. ठीक है, यहां से देखो 6 में तो मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 18 आ जाएगा. वी नो 6 में मल्टीप्लाई 3 किया, बट नाउ एवरी टाइम यू हैव टू कंपेयर विद दिस. 2 में क्या करोगे तो 18 आ रहा है. 9, very good. 2 into 9 gives you the third term, है ना, where 9 is what? 9 is what? 3 raised to power 2. 3 is what? 3 raised to power 1. ठीक है, अभी इस तरह सोचो. So when you multiply 3 raised to power 1, you are getting next term. When you are multiplying 3 raised to power 2, you are getting next to next term. ठीक है, so A2 is given by A1 into 3 raised to power 1. A3 you got by multiplying A1 with 3 raised to power 2. When it is A3, you are multiplying with common ratio raised to power 2. 54, देखो यहां से तो हमको पता है कि multiplied by 3 करेंगे तो we can get 54. But we do not have to compare with this. ठीक है, A से compare करो, क्या किया तो 54 आया, 3 क्यूब किया तो 54 आया, है ना. सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस by 3 cube, we are getting 54. So A4 is given by A1 into 3 raised to power cube. ठीक है, अब इसको और थोड़ा जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो क्या होगा, ये हमारा 3 क्या है, बेसिकली दिस इज आवर R, है ना. हमारा 3 क्या है यहाँ पे, R है ना, कॉमन रेशियो. सो इट इज A1 into R raised to power 1, A1 into R raised to power 2, A1 into R raised to power 3. Now see this pattern. Just see this for few seconds and tell me what could be the formula for AN. Very good. So it is A1 R raised to power n minus 1. ठीक है, so this is the general formula for this. देखो काफी कुछ सिमिलर लग रहा है ना, AP के जैसा है ना. हाँ, यहाँ पे बस ऐड कर रहे हैं हम लोग n minus 1. Here what we are doing, we are multiplying by common ratio raised to power n minus 1. ठीक है, so this is how we can get any general formula from a given AP if we have the first term and if we have the common ratio. ठीक है, इसको लिख लो. अब लिख लिया ना. अब अगेन गोइंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना, इसमें फाइंड आउट करो जनरल फॉर्मूला फॉर AN. अब इसमें जनरल फॉर्मूला फॉर AN. अच्छा देखो AN का फॉर्मूला वी ऑलरेडी हैव. ठीक है, तो अगर कभी भी GP दिया होगा ना और पूछा जाए कि जनरल फॉर्मूला बताओ उसका, सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस. ठीक है, वहां पे तो वो फिर आंसर दे आर एक्सपेक्टिंग. सो राइट डाउन दिस एंड वंस यू हैव दिस, कैन यू आइडेंटिफाई A raised to power 6? Can you get A raised to power 6? After writing down the third solution, find out the value of A raised to power 6. Done. So what is the general formula? 2 into 3 to the power of n minus 1. Very good. 2 into 3 raised to power
n-1. This is the general formula. ठीक है, 486. So sixth term is 486 of this given AP. ठीक है. So you understood so far what is a GP, how to identify whether a given sequence is in GP or not, how to get the common ratio and the general formula. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये चीजें कवर की हैं. Now coming to the next part. So in the previous slide we learned how to get the nth term from the beginning. है ना, just like we had questions in AP na, from the beginning, from the end also we had some questions, right? So similarly in GP also they can ask you a particular term from the end. ठीक है, तो हम लोगों ने AP में क्या किया था, हम लोगों ने AP में उसको रिवर्स कर दिया था, है ना. तो इसमें भी दो चीजें हैं, या तो AP में भी वी हैड वन जनरल फॉर्मूला और दूसरा मेथड था कि उसको जस्ट रिवर्स कर दो. इन द रिवर्स्ड AP यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट. सो बोथ द वेज आर पॉसिबल इन केस ऑफ GP ऑल्सो. We have a general formula. ठीक है, so nth term from the end is given by the value of the last term, which is our L, value of the last term divided by common ratio raised to power n-1, where n is your nth term from the end. ठीक है, so write it down. Nth term from the end of a GP is given by, I am denoting it by Tn. So dl divided by r raised to power n-1. ठीक, चलो यहीं से शुरू करते हैं. Again let's take the same example. So 2, 16, 18, 54. Again let's take the GP 2, 6, 18, 54. ठीक है, and I'm keeping this very simple, only 4 terms. ठीक है, now we know that the third term from the end is 6. ठीक है, but let's use this formula now to get the value of third term from the end. ठीक है, तो यहाँ पे we need third term from the end and we will just verify whether this formula is working or not. Now to get the third term from the end, what all do we need? Value of n. Yeah, so what is the value of n? It is 3 because we need the third term from the end. What is the value of r? It is 3. 3 again. And we need L. L is our value of the last term, which is 54. देखो हमारा AP में भी L क्या होता था? Value of the last term. यहाँ पे भी L है हमारा value of the last term 54. अच्छा देखो जितने भी कॉमन चीजें हैं ना उनको हम लोगों ने सेम रखा है. जैसे यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट टर्म है, AP में भी फर्स्ट टर्म था, दोनों को A से डिनोट कर सकते हैं या फिर A1, एक ही बात है. लेकिन क्या चीज डिफरेंट है, यहाँ पे हमारा कॉमन रेशियो है, वहां पे कॉमन डिफरेंस था, तो इसलिए दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स फॉर दैट. ठीक है, नाउ यूज दिस एंड गेट द वैल्यू ऑफ Tn एंड टेल मी वेदर Tn इज 6 और नॉट यूजिंग द फॉर्मूला. 6 you also got प्रज्ञा, पक्का ना प्रज्ञा? हाँ चलो सब कुछ करना, खुद से करना. ठीक, चलो ओके. सो वी गॉट Tn is equal to 6 using this formula. ठीक है, अब ये तो एक मेथड हो गया जिसमें फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो. इन केस यू फॉरगेट दिस, ठीक है, तो एक और हमारे पास वे है, वो क्या है? रिवर्स द GP. सो जस्ट रिवर्स द GP और फिर GP एक बार रिवर्स हो गया, उसके बाद क्या करना है, जो हमारा थर्ड टर्म था फ्रॉम द एंड इट बिकम्स थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक, तो हमारा क्या GP क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 54, 18, 6, 2, है ना. तो अब इसमें हमारा थर्ड टर्म हमको फाइंड आउट करना है. नाउ इन दिस एवरीथिंग विल बी रिवर्स, सो आर A1 विल बिकम 54 विच वॉज इनिशियली योर L, है ना. ओरिजिनल में ये L था ना, अब वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? A1. So this will become A1. Our R will also be different in this case. It will become 1/3. ठीक है, you remember in AP अगर हमारे ओरिजिनल में डिफरेंस was D, तो रिवर्स करने पे क्या बनता था? -D. You remember this? तो इसी तरह से अगर हमारा ओरिजिनल GP में हमारा कॉमन रेशियो है R, so when you reverse it, it will become 1/R. ठीक है, रेसिप्रोकल होगा. देखो चीजें ध्यान रखना, यहाँ पे एडिशन वाली चीज हो रही है इसलिए वो इस तरह से चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसीलिए वो
रेसिप्रोकल के फॉर्म में होगा, ठीक है. डोंट राइट इट एज माइनस आर, इट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द प्रीवियस कॉमन रेशियो. ठीक है. सो आर आर विल बी 1/3 and what we have to find out? A3, right? So A3 will be, how do we get it? A into R into n minus 1 है ना. तो ये हो जाएगा 54 into 1/3 raised to power 3 minus 1 which is 2. So this will be 54 into 1 raised to power 3 whole raised to power 2 which is 54 divided by 9. अब थोड़ा सा ना हम लोग फोकस करेंगे कि जीपी का ग्राफ दिखता कैसा है. देखो, तो मैंने यहाँ पे x और y एक्सिस बना लिया है. आई प्लॉट द ग्राफ. ठीक. नाउ फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ अ जीपी, सपोज आई हैव अ जीपी वेयर माय a इज 1, गेटिंग इट, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड माय कॉमन रेशियो इज 2. ठीक है. तो मुझे बस जस्ट टेल मी 4 टर्म्स using this. What will be my first term? What will be second, third, fourth? Like just tell me 4 terms. Using the 4 terms only I'll draw the graph. ठीक है. चलो आइडेंटिफाई करो. फर्स्ट टर्म बताओ, सेकंड टर्म बताओ, थर्ड एंड फोर्थ. So if I use a is equal to 1 and r is equal to 2, my first term will be 1, second term will be 2, third term will be 2 into 2 which is 4, fourth term will be 4 into 2 which will be 8. Yeah. Now suppose if I want to write it down in the form of Cartesian point where my first point is given by the term and the second point is given by the value of the term. ठीक है. तो ये मेरा x का वैल्यू हो जाएगा, ये मेरा y का वैल्यू हो जाएगा. सो फॉर द फर्स्ट कार्टेशियन पॉइंट विल बी 1, 1, 1. सेकेंड कार्टेशियन पॉइंट विल बी 2, 2. थर्ड कार्टेशियन पॉइंट विल बी 3, 4 because for the third term I am getting the value 4. So it will be 3, 4 and for the fourth Cartesian point my value will be 4, 8. ठीक है. 4, 8. अब चलो इसको प्लॉट करते हैं. ये मेरा 0 है ओरिजिन. दिस विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6. आई थिंक ओनली टिल 4 वी नीड. हियर ऑल्सो दिस विल बी 1, 2, 3, 4, 8 तक. 5, 6, 7, 8. Okay. Now let's plot the first point which is 1, 1. So 1, 1 it will come here. 2, 2, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 8, 4, 8 like this. ठीक है. अभी ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं एंड ट्राई टू जॉइन द पॉइंट्स, है ना, मतलब ऐसे ही फ्री हैंड से. डू यू सी अ कर्व ग्राफ हियर? है ना, थोड़ा सा कर्व ग्राफ दिख रहा है ना. अभी इसको और ऊपर करोगे तो इट विल लुक अ कर्व ग्राफ. नाउ द कर्व कैन बी लाइक दिस, ओके, डिपेंडिंग अपॉन योर वैल्यू ऑफ आर. ठीक है. अगर हमारी आर की वैल्यू कुछ इस तरह से है सो दैट every next term is increasing, you will get the curve like this. If your r value is a proper common ratio, proper real number, है ना, तो क्या होगा हमारा हर एक टाइम क्या होगा, एक नंबर हमारा डिक्रीज होता जाएगा. यू रिमेंबर आई गिव यू, है ना, 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो योर कर्व विल लुक लाइक दिस इन दैट केस. एक्चुअली दिस टॉपिक इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस इन 9th ग्रेड, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, बस यूं ही समझ लेते हैं. जैसे हम लोगों ने एपी में क्या समझा था, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, राइट. सिमिलरली लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन केस ऑफ अ जीपी. ओके, सो राइट डाउन द हेडिंग, sum of first n terms of a GP. But this is not in our syllabus of academic year 2026-2027. Just something extra. So sum of first n terms is given by, there will be two formulas actually. So first thing is like, it is given by a into r raised to power n minus 1
whole divided by r minus 1 if your r is not equal to 1. ठीक है, तो यहाँ पे दो फॉर्मूला, जैसे एपी में तो एक ही फॉर्मूला था ना, लेकिन हमारे जीपी में दो फॉर्मूला है और बताएंगे भी क्यों दो फॉर्मूला है, वो बताऊंगी मैं. सो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला एंड द कंडीशन इज इफ योर कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 1, in that case you will use this, and if your common difference is equal to 1, in that case you will use n into a. So sum of first n terms of a GP is given by a into r raised to power n minus 1 whole divided by r minus 1 if r is not equal to 1. ठीक है, तो अगर common ratio 1 नहीं है then we will use this formula. अगर common ratio 1 है तो we will use n into a. ठीक है, अच्छा चलो एक एग्जाम्पल देखो जीपी का, वेर योर कॉमन रेशियो इज 1. ठीक, सो योर फर्स्ट टर्म, सपोज योर फर्स्ट टर्म इज a, योर सेकंड टर्म विल आल्सो बी, सॉरी, इफ योर फर्स्ट टर्म इज 4, योर सेकंड टर्म विल आल्सो बी 4 itself because we are multiplying it by 1, है ना, तो सेकंड टर्म भी हमारा 4 हो जाएगा, थर्ड टर्म भी 4 हो जाएगा, फोर्थ टर्म भी 4 हो जाएगा. जस्ट सपोज लाइक दिस यू हैव टोटल 99 टर्म्स, so all these 99 terms will be 4. ठीक है, so when you are adding this, अगर सम निकालना है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर 4 को ही तो खाली ऐड कर रहे हैं ना. we are only adding 4 how many times, 99 times, है ना. so 99 times we are adding 4. अच्छा, अगर 4 को 99 times ऐड कर रहे हो तो can we also write it down like 99 into 4? Can we do that? है ना? So exactly the same thing I have written here. If your common difference is 1, then you will simply write down that it is equal to your number of terms into your first term. ठीक है? तो ये क्लियर हो गया? ठीक? और इसका डेरिवेशन हम लोग बाद में देखेंगे, हायर क्लास में देखेंगे. फिलहाल के लिए if you simply multiply, then that in case it is not equal to 1, then this is the formula. अच्छा, इसको हम लोग क्यों यूज नहीं कर रहे हैं if r is equal to 1? थोड़ा सोच के देखो. वेरी गुड. सो व्हाट विल हैपन? वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड. हम लोग इस फॉर्मूला में ही क्यों नहीं सिंपली r इज इक्वल टू 1 पुट करके और निकाल देते हैं, बिकॉज इफ यू डू दैट हियर इन द डिनोमिनेटर वी विल गेट 0, 1 minus 1 विच इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको कंप्लीटली एक डिफरेंट कंडीशन बना के हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है. ठीक, सो अगेन कैन वी यूज द फॉर्मूला फॉर द सेम जीपी. अब तक हम लोगों ने जो जीपी को यूज किया है ना, उसी में एक बार करके देखें. सो इफ आवर जीपी वाज, व्हाट वाज आवर जीपी, 2, 6, 18, 54, और हम लोग सिर्फ 4 टर्म्स तक ही रखेंगे. ठीक है, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे. सो लेट आवर जीपी बी 2, 6, 18 एंड 54. फाइंड आउट S4 यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला. और बताओ मुझे what will be the sum of first 4 terms? So using formula also you got 80, है ना. Here what I did, I simply added them, and using formula also you are getting 80, right? So this is how we can verify that this formula is working for this GP. ठीक है, तो ये हमारा formula है SN find out करने के लिए. Okay, so now let's quickly revise what all we covered today. So we understood the definition of a GP. GP क्या है? सबसे पहले तो एक सीक्वेंस होता है जिसमें every next term, how do we get the next term? By multiplying a particular number by with the previous number, है ना. तो previous number में multiply किया तो हमारा next number आ गया, and it is a sequence, so definitely determining any particular term is easy for us. First term is the first term of the GP given by either A or A1. Common ratio is the real number with which we multiply any particular term to get the next term. ठीक है, and how do we get the common ratio? an plus 1 divided by an. ठीक, nth term formula is given by a into r raised to power n minus 1. ठीक है, आज ही याद करके जाना, a into r raised to power n minus 1. Now nth term from the end is given by, there are 2 formulas. ठीक है, एक तो फॉर्मूला है लास्ट टर्म के रिस्पेक्ट में, है ना. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? L डिवाइडेड बाय हाँ, ओके. सो यूजिंग द जनरल फॉर्मूला वी कैन गेट द nth वैल्यू फ्रॉम द एंड यूजिंग L डिवाइडेड बाय r raised to power n minus 1 वेयर L इज योर लास्ट टर्म. ठीक है, और सेकेंड मेथड क्या है? रिवर्स द GP and then get the first term common ratio, and you can simply find out the nth term from the beginning.
And then finally, we learnt about some of the first n terms